ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣ. ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅವರು ಮುನಿಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುರಿತಾದಂಥ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶೋಷಣೆಗಳು ಯಾಕೆ ಆಗತ್ತೆ? ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ? ಮಹಿಳೆಯಾದವಳು ಮಗಳಾಗಿ, ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ, ಹಲವು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪತಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಿತಳಾಗಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಬಹಳ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ತನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಪುರುಷರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಕೆಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಕೇಳಿದಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೀ ಆಕೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ. प्रश्न को एक बार आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? Sure. The question of today is that why women are always harassed by men. The woman serves as a mother, as a daughter, as a wife, as a friend, as a well-wisher, as a home caretaker, what not. She is everything to a man, and men should have understood the significance of a woman. Unfortunately, a woman is getting harassed by men irrespective of the age also. And most of the religions too take this responsibility. Most of the people treat women as a second level citizen. And what's the reason behind this? And what is the solution for the problem of a woman? This is the question raised by one of a lady from North India to me, and I'm just forwarding this question to Puj 105 Kshullak Dhyansagar Maharaj. So over to Kshullak 105 Puj Dhyansagar Maharaj. ओम नमः सिद्धिभ्यः।
After discussing for many days about the nature of our soul, our true self, the Atma, the Brahma, कई दिनों तक आत्म स्वभाव के ऊपर चर्चा करके शुद्ध ने ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा करके आज ये एक प्रश्न आया है। उत्तर भारत की कोई माता ने ये प्रश्न भेजा है कि चाहे धर्म हो या लौकिक जगत हो, सर्वत्र पुरुष का स्थान ऊंचा और नारी का नीचा क्यों, और नारी का जीवन क्लेशपूर्ण क्यों होता है, और इसका समाधान क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर शास्त्र के आधार पर देने का प्रयत्न करते हैं। आगम में संसार के सारे जीव कर्मों से बंधे हुए हैं, और कर्मों के जो फल होते हैं वो बड़े विचित्र होते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुषों को कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता, लेकिन नारियों को अबला होकर के भोगना पड़ता है। बस ये एक पीड़ाजनक स्थिति है। पहली बात ये जाननी होगी कि स्त्री वेद और स्त्री लिंग, इनको भाव की अपेक्षा से तो एक ही माना जाता है। वेद नाम का एक कर्म होता है मोहनीय कर्म के अंतर्गत, जो आत्मा में स्त्री के भाव उत्पन्न करता है। जो भाव स्त्री में होते हैं वो भाव उत्पन्न करता है, उसको वेद कहते हैं। और फिर लिंग जो है वो लोक में जो प्रसिद्ध है वो शारीरिक आकृति पर निर्भर करता है। तो वो जो आकृति है, आगम में 21 औदैहिक भावों के अंतर्गत जो लिंग शब्द आता है वो वेद का वाचक है। लेकिन लोक में जिस लिंग को इस्तेमाल किया जाता है, जिस लिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो जेंडर वाचक है। वो बाह्य मुद्रा का वाचक होता है। उसको जैन शास्त्रों में द्रव्य लिंग कहते हैं, और जो अंतरंग भाव होते हैं वो भाव लिंग कहलाता है। उसको भाव वेद कहते हैं और उसको द्रव्य वेद कहते हैं। वेद लिंग एक ही बात है। तो प्रश्न ये आता है कि ये जो द्रव्य और भाव, शरीर से स्त्री है, भावों से स्त्री है, इसके विषय में क्या संपूर्ण कर्म भूमि में एक रूपता होती है, या इसमें भी कहीं पर कोई अपवाद होता है। तो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती लिखते हैं कि कर्म भूमि में पायण समा कहीं विषमा, प्राय करके जैसे भाव होते हैं वैसे ही शरीर होता है, जैसा शरीर होता है वैसे ही भाव होते हैं। लेकिन कहीं विषमा, कहीं पर विषम स्थिति भी होती है। शरीर स्त्री का मिला है लेकिन भाव पुरुष के हो रहे हैं। शरीर पुरुष का मिला है लेकिन भाव स्त्री के हो रहे हैं। ऐसी विषमता भी यहाँ कर्म भूमि में पाई जाती है। तो जो स्त्री के भाव उत्पन्न करने वाला कर्म है
वो कर्म जीव को कैसे प्राप्त होता है, उसका बंध कैसे होता है जीव के साथ? तो उसका उत्तर सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में तत्वार्थ सूत्र की टीका में 6ठे अध्याय के एक सूत्र में दिया हुआ है। उस सूत्र का उच्चारण इस प्रकार है, कषाय उदयात तीव्र परिणामश चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से जो अपने अंदर भावों में तेजी आ जाती है, तीव्रता आ जाती है, उससे इन कर्मों का बंध होता है। 25 प्रकार के कर्मों का बंध होता है। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ, संज्वलन क्रोधमान मायालोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। इन 25 कर्मों का बंध कषाय के उदय से होने वाले भावों से होता है। और इनमें एक स्त्री वेद नाम का कर्म है। उसका बंध कैसे होता है उसके विषय में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, अली का विधाई ताति संधान परत्व पर रंध्रा प्रेक्षित्व प्रवृद्ध रागादे स्त्री वेदनीयस्य। सर्वार्थ सिद्धि की ये पंक्ति है जिसका अर्थ है झूठ बोलना, अधिक छानबीन करना, अधिक छानबीन करने का मतलब मायाचार। कहाँ क्या चल रहा है, कौन क्या चर्चाएं करते हैं, ये सारी बातें, मतलब पूरी रिपोर्ट्स रखना। और पर रंध्रा प्रेक्षित्व, बोले दूसरों की कमजोरियों को पकड़ लेना। और प्रवृद्ध रागादि, रागाधिक की अधिकता रखना, राग भी अधिक करना, द्वेष भी अधिक करना, और आदि शब्द से और भी चीजें हैं, कामादिक। तो इन भावों की अधिकता से उस कर्म का आत्मा को बंध होता है। और इन भावों की अधिकता अगर पुरुष को होगी तो उसको भी बंध होगा। पर इसके उदय से वो स्त्री वेद उदय में आ जाता है। और फिर इसके बारे में लिखा है, नान्तर मौहूर्तिका वेदा संति तत्र कषायवत। संस्कृत पंच संग्रह में, नान्तर मौहूर्तिका वेदाः संति तत्र कषायवत आजन्म मृत्यु तस्तेषां मुदयो दृश्यते यतः। शरीर को तो सेक्स चेंज सर्जरी के माध्यम से, लिंग परिवर्तन शल्य चिकित्सा के माध्यम से परिवर्तित किया जाता है। कुछ इंजेक्शंस देते हैं हार्मोन्स के, और शरीर में भी कुछ अंगोपांग का प्रत्यारोपण करके एक बालक को बालिका, बालिका को बालक आज बना लेते हैं। तो वो द्रव्य वेद में परिवर्तन शक्य है रसायनों के माध्यम से, क्योंकि द्रव्य वेद पौद्गलिक है, शारीरिक है, नाम कर्म से निर्मित है। लेकिन भाव वेद जो होता है उसके विषय में आचार्य कहते हैं, धवला की पहली पुस्तक में भी लिखा है कि उसका जो उदय है जन्म के समय प्रारंभ होता है, मृत्यु तक बदलता नहीं है। यदि किसी जीव को स्त्री वेद का उदय आ गया, चाहे उसका शरीर पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो, तो वो जीवन भर ज्यों का त्यों रहेगा, वो भाव बदल नहीं सकते। तो ये तो हुआ भाव वेद के आश्रव का कथन कि इन 4 भावों की प्रधानता से स्त्री वेद का आश्रव होता है। झूठ बोलना, अधिक छानबीन करना, दूसरों की कमियां पकड़ना, और आवश्यकता से अधिक राग द्वेष करना, और आदि शब्द से काम आदि में रुचि लेना, ये स्त्री वेद के आश्रम है। और ये अगर बंध गया कर्म, तो जब भी उदय में आएगा तो प्रायः करके वैसा ही शरीर मिलेगा आपको, क्योंकि नाम कर्म भी तदनुकूल प्राप्त हो जाएंगे।
और अगर शरीर मिल गया तो शरीर मिलने के बाद 5 प्रकार की स्थितियां निश्चित रूप से बनेगी। उसके विषय में प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य जयसेन स्वामी ने जिन गाथाओं पर टीका की है उनमें 224 नंबर की जो प्रवचन सार की गाथा है उसके बाद 14 गाथाएं ऐसी है जिस पर जयसेन आचार्य की टीका उपलब्ध होती, तात्पर्य वृत्ति। उसमें एक गाथा आती है कि अगर स्त्री लिंग प्राप्त हो गया, जिसको लोक में स्त्रीलिंग कहते हैं, तो फिर 5 चीज़ें रहेंगी उसके जीवन में। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? तो बोलते हैं संतिधोम पमदानम मोह पदोसो भयम दुगुन छाय चित्ते चित्ता माया तम माता सिंह वाणम। बोले कि निर्वाण में बाधक ऐसी 5 प्रवृत्तियां स्त्री का शरीर प्राप्त करने वालों में पाई जाती है। निष्पक्ष कथन है। हमसे एक बार विदेश से भी प्रश्न किया गया था, तो उसका भी हमने उत्तर दिया था, वो अभी हम बताते हैं। इसमें ये लिखा है कि गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग बोलते हैं जिसको, आप चेक कर लेना, सर्वेक्षण कर लेना, ये 5 बातें सच्ची है या नहीं है, आप जांच कर लेना। मिसअंडरस्टैंडिंग पुरुषों की बनिस्बत स्त्री पर्याय में, नारी जाति में बहुत अधिक होती है। मान लो पुत्र ने फोन पर बात करके कोई बात ऐसे छुपाई अपने माँ से, तो माँ के अंदर तो पूरी कहानी रेडी हो जाती है। जबकि वहां पर कोई दूसरी स्थिति है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे फर्स्ट ब्लेमिश है। सेकंड है प्रद्वेष, जिसको कहते हैं ईर्ष्या। ये ईर्ष्या भी आप चेक कर लेना। किसी को अधिक प्रेफरेंस मिल गया तो क्या फीलिंग होती है, चेक कर लेना। स्त्री पर्याय में ईर्ष्या भी होती है। एक बार एक आचार्य के संघ की विदुषी ब्रह्मचारिणी एक माताजी से मिलने गई, तो उनकी विद्वत्ता को देखकर माताजी बोली कि मैं भले माताजी हूँ लेकिन मुझे ईर्ष्या हो रही। ईर्ष्या का कारण आत्मविश्वास की कमी है। ईर्ष्या को घटाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नारी होने के बाद ईर्ष्या पर बिल्कुल विजय प्राप्त ना हो सकती हो, उसको घटाया जा सकता है। आत्मविश्वास बढ़ा लो, ईर्ष्या चली जाती है। उसको जो चीज़ प्राप्त हुई है मुझे नहीं हुई है, तो ईर्ष्या करने के बदले मैं अपनी पात्रता बढ़ा लूं तो मुझे प्राप्त हो जाएगी। कौन सी बड़ी बात है? ये तो कर्म भूमि है, पुरुषार्थ की भूमि है। ईर्ष्या करने से तो मेरा मन खराब होगा। तो ये दूसरी बात थी, ईर्ष्या। तीसरी बात, भय। पुरुष की अपेक्षा नारी में भय की मात्रा अधिक होती है। तो ये इसको लेकर के इंग्लैंड से, ब्रिटेन से एक क्वेश्चन पूछा था हमसे किसी ने कि यहाँ तो महिलाएं बिल्कुल डरती नहीं। बोले यहाँ इंग्लैंड में तो स्त्रियां बिल्कुल निडर है। बोले पुरुष डर जाते हैं। तो फिर हमने कहा कि आगम के वचन अप्रामाणिक नहीं होते, ये शास्त्र वचन जिनेंद्र के वचन है। तो सर्वज्ञ भगवान ने कुछ जान करके ही ये बात कही है कि भय अधिक होता है। तो हमने उनको एक क्वेश्चन पूछा कि आप अपने लंदन में या आपके कंट्री में ये देख लेना, ये सर्वे कर लेना, सर्वेक्षण कर लेना कि आत्महत्या करने वालों की संख्या कहाँ अधिक है, पुरुष वर्ग में या नारी वर्ग में। और आत्महत्या
बहादुर लोग करते हैं या डरपोक लोग करते हैं? वीर लोग आत्महत्या करते हैं या कठिनाइयों को फेस करते हैं? क्या करते हैं वीर लोग? वीर लोग हर मुश्किल का सामना करते हैं, पलायन की नहीं सोचते, मरकर उनसे भागने का विचार नहीं करते। कायर लोग घबरा कर मर जाते हैं। तो आत्महत्या की संख्या किसकी अधिक है देख लो। तो पता चला कि परसेंटेज बहुत अधिक था नारी वर्ग में। भले यहाँ पर वहाँ की संस्कृति और वातावरण के कारण डेयरिंग हो सकती है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस हो सकती है, फ्रैंकनेस हो सकती है, लेकिन डर अधिक होने के कारण आत्महत्याओं की संख्या अधिक है। इसलिए आगम के वचन बाधित नहीं है। वो तो वहां का व्यवहार है, वैसा बोल्ड व्यवहार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर डर का अभाव हो। कभी कभी डरने वाले भी एक्टिंग करते हैं कि हम नहीं डरते। अब जैसे मान लो घर में सांप निकल जाए तो जो लोग हकीकत में डर रहे हैं वो दिखा भी देते हैं कि भाई हम डर रहे हैं, पर उनमें से कोई एक आध जो होता है वो ये शो करता है कि मैं नहीं डरता हूँ, और वो ऐसे उसके सामने जाता है तो बाकी लोग सब सोचते हैं कि कितना बहादुर है, जबकि वो सांप अगर उसकी तरफ मुंह कर दे तो 10 फीट पीछे उछल गए। खैर, ये भी एक बात कही आचार्य महाराज ने। और फिर दुगुंशा एक पर्यायगत परिस्थिति होती है कि उस काल में निरंतर एक ग्लानि बनी रहती है। वो उस पर्याय में ऐसा समय आता है कि वो ग्लानि से मुक्त नहीं हो सकते उतने समय तक के, और उसके बाद भी जब जब स्मरण आता है तो फिर मन में आकुलता आती है। और अंतिम जो बात बताई है, 5 बातें बताई हैं। पहली बात क्या थी? गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, भ्रांति पाल लेना। दूसरी बात थी ईर्ष्या, जलन। तीसरी बात थी ईर्ष्या का अर्थ जेलसी होता है इंग्लिश में, एनवी होता है। तीसरी बात भय, और चौथी बात ग्लानि, और उसको जुगुप्सा बोलते हैं संस्कृत में, विचिकित्सा भी बोलते हैं। अब 5वीं बात जो है चित्ते चित्ता माया, यानी मानसिक जो छल होता है प्रकृति से, वो अनेक प्रकार का होता है। उतने प्रकार का छल पुरुष के अंदर नहीं हो सकता। अगर पुरुष छल का मार्ग पकड़ ले और फिर ट्रेनिंग लेकर के स्पेसिफाई कर ले, अपने आप को स्पेशलाइज कर ले, तो बात अलग है। लेकिन फिर भी जो सहज रूप से स्त्री पर्याय के अंदर वो चीज़ होती है वो पुरुषों में नहीं पाई जाती। तो ये 5 भाव, ये 5 स्थितियां निर्वाण को बाधित करती है, ऐसी ये गाथा लिखी हुई है। Sorry, what is the fifth one? फिफ्थ वन इज deceit. Deceit. They can hide something so magnificently that even after decades nobody can understand that that was a deceit. कोई चीज छुपाना हो तो फिर उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये बात थी। और आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने तो कहा था कि नारियों के अर्थ भंडार की राशि उनके कुटुंबी भी नहीं जान सकते। सुकुमार मुनिराज की कथा सुना रहे थे तब उनने ही कहा था कि यशोभद्रा के पास इतनी संपत्ति थी कि राजा से भी अधिक संपत्ति थी, और उसने वो जो रत्न कंबल खरीद लिया जो राजा नहीं खरीद सका, वो उसने खरीद लिया था।
सुकुमार की माँ यशोभद्रा सेठानी ने। तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि उनका जो अकाउंट होता है वो किसी को पता नहीं होता। तो छुपाने की जो बात होती है वो कह रहे हैं कि वो उस पर्याय में सहज रूप से आ जाती है। अब अगर देखो, नारी की दो प्रकृतियां होती है। एक तो संस्कार में रुचि रखने वाली नारी, और दूसरी सुखों में रुचि रखने वाली। तो जो संस्कार प्रेमी नारी होती है वो देश का, कुटुंब का और विश्व का उद्धार करती है। और जो सुखों में रुचि रखने वाली नारी होती है उसके कारण कई बार नारी जाति को नीचा देखना पड़ता है। तो ये चयन की बात है, पूर्व भाव के संस्कार की बात है कि कौन किस दिशा को पसंद करता है। हर युग में दोनों को चुनने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं कि आज का युग ही भटका हुआ युग है। ये जरूर है कि पहले संस्कारों का मूल्यांकन अधिक होता था। आज सुख सुविधाओं में रुचि अधिक है, ये बात अलग है, लेकिन हमेशा ये स्थिति रही है। संख्या में अंतर हो सकता है लेकिन स्थितियां दोनों हमेशा रहती। तो इस बात को सुनने वाले यदि अंतः प्रेरित हो जाए, बात से प्रेरित ना होकर अपने हृदय से प्रेरित हो जाए, तो वो विश्व के लिए कुछ भला कार्य कर सकते हैं, योगदान दे सकते हैं। क्या कहा हमने? दो प्रकार की नारियों में कौन सी नारियां थी? एक संस्कार प्रेमी और दूसरी सुख प्रिय, सुख को पसंद करने वाली, जिसको शौकिया बोल सकते हैं उर्दू भाषा में। सुनने में अच्छा नहीं लगता शब्द, लेकिन शौकिया बोलते हैं इसको। संस्कार प्रेमी नारी का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन अगर वो अपने मार्ग पर अडिग रहती है तो उसका योगदान अविस्मरणीय बन जाता है। और शौकिया नारियों का वर्णन करते हुए आचार्यों ने ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को सचेत किया है। सावधान किया है कि देखो, ऐसी प्रवृत्तियां होती है नारियों की, और उन नारियों के दोषों का भरपूर वर्णन किया है शास्त्रों में कि अगर वो पतन के मार्ग पर चली जाए तो क्या नहीं कर सकती, सर्वनाश कर सकती है। तो उनको विमुख किया है, क्योंकि प्रायः करके आकर्षित दिखने का जो भाव होता है वो उनमें होता है। और आकर्षित होना अलग बात है, आकर्षक होना अलग बात है, लेकिन वैसा शो करना एक अलग अभिरुचि का परिचायक है। तो आचार्य महाराज ने ये बात बताई है कि जो सन्मार्गी है उनको आकर्षण से बचना आवश्यक है, क्योंकि आकर्षण में पतन का मार्ग है और संस्कारों में उत्थान का मार्ग है। एक बात और है, उस प्रकरण के अंत में लिखा है कि पतित नारी से भी पतित दुष्ट पुरुष होता है, क्योंकि नारियों के पतन का मार्ग पतित पुरुष के माध्यम से खुलता है और पतित नारियों के माध्यम से भी खुलता है। दोनों मार्ग बताएंगे। और सबसे खास बात बताई कि इस प्रसंग को पढ़कर नारी की छवि बिगाड़ना मत। अंतिम चेतावनी उन्होंने दी है ब्रह्मचारियों को कि नारी की छवि बिगाड़ना मत। सतीत्वेन महत्वेन
वृत्तेन विनयेन च सतीत्वेन महत्वेन वृत्तेन विनयेन च, अपने सतीत्व के द्वारा, अपनी महानता के द्वारा, अपने चारित्र के द्वारा, अपने विनय के द्वारा स्त्रियः काश्चित् भूषयन्ति धरातलम, कई स्त्रियां इस पृथ्वी तल को विभूषित करती हैं। एक शब्द छूट रहा है, अब भी मिल जाएगा। इस प्रसंग को अपन आगे भी थोड़ा सा कंटिन्यू कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं, क्योंकि कुछ और जानकारियां भी हैं नारी मर्यादा के विषय में। पुरातन भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति, सभी संस्कृतियों में, वैदिक परंपरा, श्रमण परंपरा, सर्वत्र नारियों के लिए जो मर्यादाएं बताई हैं वो कितनी महत्वपूर्ण और कितनी लाभकारी है, उसकी भी अपन चर्चा कर सकते हैं। अभी हमने सबका संग्रह किया तो हमें ऐसे 19 स्थान मिले हैं जो नारियों के लिए वर्जित है। 19 का अर्थ होता है 19। विवेकेन स्त्रियः काश्चित् भूषयन्ति धरातलम, ये श्लोक है। यानी विवेक, नारी के विवेक से युद्ध टल जाते हैं और अविवेक से युद्ध हो जाते हैं। एक नारी दर्पण नाम की काव्य रचना हमने की थी, उसमें लगभग 100 काव्य हैं नारी को लेकर। यदि उसको प्रति सप्ताह कोई पढ़ ले तो फिर वो रिचार्ज हो जाए, ऐसे ही। तो अभी अपन इतना रखते हैं कि आचार्य महाराज ने अंत में ये कहा है कि नारी की छवि को अपने हृदय में बिगाड़ मत लेना। और मूलाचार में आचार्य महाराज ने कहा है कि ब्रह्मचर्य व्रत क्या वस्तु है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुशील से विमुख हो जाना मात्र ब्रह्मचर्य है, अब ब्रह्म का त्याग करना मात्र ब्रह्मचर्य है, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हर नारी में, यदि वो उम्र में बड़ी है, बुजुर्ग है, तो माँ को देखना, हम उम्र है तो बहन को देखना, और बहुत छोटी है तो बेटी को देखना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। अगर ये दृष्टि सचमुच प्राप्त हो गई तो आपको नारी जाति का वर्णन करते समय मुंह से स्त्री शब्द बोलना भी अखरेगा, क्योंकि मां को, बेटी को और बहन को स्त्री नहीं कहते। तो वही शब्द आपके मुख से आदर सूचक शब्द निकलेंगे, और जिसके प्रति आदर होता है उसके प्रति विनय होती है, और जिसके प्रति विनय होती है उसके प्रति विकार कभी नहीं होता। जैनम जय शासन। ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ತ್ರೀ
ಭವ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸ್ತ್ರೀ ಭವದ ಭಾವನೆಗಳು ಏನು, ಅವರ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಏನು, ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಏನು, ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜನ್ಮವ ಬಂಧನ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತು. ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಕತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ. ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಇದೆ. ಏನು ಸಂಶಯ? ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿರುವಾಗ ಸ್ತ್ರೀಯೊಬ್ಬಳು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅವಳನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಡ, ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಜೊತೆ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ. ಶಿಷ್ಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಅವಳನ್ನ ನೋಡಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಅಲ್ಲ, ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ಆಯಿತು, ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಡ. ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಅವಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ, ಮುಟ್ಟಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮುಟ್ಟಲೇಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭವು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಗ ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಾಣು ಅಂತ. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು ನೋಡಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅದು. ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ತಾಯಿ ಅನ್ನುವಾಗ, ಅಕ್ಕ ಅನ್ನುವಾಗ, ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಸೂಚಿ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀತ್ವದ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೌರವದ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡುವ ಪುರುಷನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಅದು. ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಾಣೋಣ, ಸಮವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಕಾಣೋಣ, ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಣೋಣ. ಆಗ ಪುರುಷನ ದೃಷ್ಟಿ, ಸ್ತ್ರೀ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಪುರುಷನ ದೃಷ್ಟಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಸ್ತ್ರೀ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾಳೆಯ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ವರ್ಧತಾಂ ದಿನಶಾಸನ.